ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣ। ਆਪ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਣ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ। ਆਪੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣ। ਆਪ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਣ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਣ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਨ। ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਦਿਵਾਵੈ ਮਾਣ। ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਤੁਲ ਪਰਵਾਣ। ਆਪੇ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਤੁਲ ਪਰਵਾਣ। ਆਪੇ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ,
ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰੈਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਿੱਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਣਾਏ ਨਾਰਾਇਣ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਿੱਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ, ਇੱਥੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਔਖੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੋ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਚੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੰਡਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਭਵਤः ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨ ਆਈਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ
ਅਸੀਂ ਅਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੇ ਉਂਝ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਕੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ, ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਖੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਝਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੱਬਾ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਲਪ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੋ ਨੇ,
समाजिक तौर पर भी नुकसान किया। पुछिए जे क्यों? आखिर जी पुत्र का मोह ज़्यादा पै गया, पुत्र के मोह करके गुनाह करते हैं। अज भी राजनीति में किते ध्यान ना देख लैन, लोग अपने परिवार के मोह करके कौमां का घाण करन तक तैयार हो जाते हैं और हो रहे ने लोग सदियों तो रहे आए सन। सानू इस गल की समझ रखनी है कि इत्थे सत्य की है, क्योंकि सत्य ही सदीवी साडा साथी है। तो इत्थे असीं सत्य का संग करन लई आए, तो सत्य का संग उदों ही होएगा जदों असीं असत्य जो कुछ भी है उहदा त्याग करन लई तैयार हो जावांगे। कल शामी असीं बैठे वाच रहे सां, झंडा वाढी गुरु नानक पारे सतगुरु पातशाह के प्यारिਆਂ चों एक गुरसिख है, महाराज जी ने उहदे संवाद हुंदे ने। वो कहंदा जी मैनूं ज्ञान चाहिए है। उहदा साथी जो इंद्र सैन भी कहंदा महाराज ज्ञान चाहिए है। महाराज कहंदे ज्ञान की प्राप्ति वास्ते, सत्य की प्राप्ति वास्ते की तुसीं असत्य का त्याग कर सकोगे? वो कहण लगे जी सानूं दसी जो कि असत्य है, असीं असत्य का त्याग कर देंगे। महाराज कहण लगे धन संपत्ति पदार्थ असत्य है, कहण लगे छड्ड देंगे, छड्ड दिता। शरीर असत्य है, कहण लगे छड्ड दिता। चित्त जित मन बुद्ध अहंकार जो साड़ा अंतस्करण है, महाराज कहण लगे ये असत्य है, कहण लगे भी छड्ड दिता। असीं अपना धन भी छड्ड सकते हाँ। आप दा ज्ञान जो गुरु नानक दा ज्ञान प्राप्ति लई सानू असत पदार्थ छड्डांगे, पर सानू पता नहीं असत की है, तुसीं दसो। महाराज कहण लगे आ धन धन संपत्ति जिन्हों आप अज प्रॉपर्टी कहने असत है, छड्ड दिओ। कहण लगे सत, छड्ड दिता। महाराज कहण लगे शरीर ते सदा निभना नहीं ना, कहण लगे भी छड्डता, ये भी तुहानूं मत्था टेकता। मन मत बुद्ध सुरत चित अहंकार जो सब कुछ साडा अंतःकरण है, महाराज कहण लगे ये भी तो सदा रहने वाला नहीं गा, असत है, कहण लगे भी त्याग किया गया। जो फुरना है वह असत है, छड्ड दिओ। बिल्कुल सत रह गया, समाधि टिक गया। अज झंडे बाढ़ी की साखियाँ पढ़ते नाम ਲਈ नहीं उन्हों का, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक साहब के सन्मुख होके असत का जिन्हों गुरबाणी च कूड़ कहते ने, कूड़ का त्याग करना स्वीकार कर लिया। गल तो नहीं कि होर गुरु नानक ने घर बार था छुड़ाना उन्होंने, गुरु नानक जी मंगता नहीं बनाते। गुरु नानक पातशाह साहब जी साडे तो कूड़ का त्याग, सानू कहते हैं छोटो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल छाहाड़ा। ये कूड़ मार देगा तो छड्ड दिओ ना। तो जो कूड़ नूं छड्डांगे, असत नूं छड्डांगे तो पता लगे मारे सत की है, फिर पता लगे सत ते परमात्मा है। इसे करके गुरु नानक का पहला बोल जो संगत सामक सत करतार है, सत ते करतार है ना। फिर सानू बख्शिश करके तो सत की है, सत नाम है। अज भी आप पढ़ते हैं ना, एक ओंकार ही सत है, तो सत की है? बस नाम है, नाम ही सत है। तो जिथे जिथे नाम है उथे उथे सत वरतदा। हुण आपां ये समझण की कोशिश करने कि जिथे भी नाम वरतदा है उत्थे सत है। तो जदों इस पासे पहुँचते हैं तो परमात्मा का नाम सत है, परमात्मा सत है, तो फिर पातशाह कहने फिर दृष्टिकोण बदल, संसार नूं वेखण दा कोण बदल दे। दुनिया वाले पासे खलो के देखांगे तो संसार शोक सागर है, दुखों का घर है, असत है। तो जो गुरु नानक के चरणों च खलो के देखांगे फिर एक पता लगेगा ये सत है, ये धर्मशाला है, ये करता पुरख की बनाई बनतर है, ये आप सत वाहिगुरु जी ने तो उन्हों का किया सब सत है। फिर पता लगेगा ये सब कुछ आज जो कुछ आप देख रहे हैं आपे आप है। बस दृष्टिकोण बदलना इतने आपा ने, इतने आप ना तो लिबास बदलने ने, ना अपनी किरतां बदलनियां ने, ना अपना कुछ होर परिवार बदलना है, ना घर बार देश कौम कुछ नहीं, सिर्फ अपना विचार दृष्टिकोण बदल देना है। जिसनों दार्शनिक भाषा कहा जाता है असां ने केवल अपनी दिशा बदल देनी है, तो दिशा बदल के आप इत्थे पहुँच जाना है कि सब करता पुरख तू है। कल आप पढ़ रहे सां इस पावन शब्द दी पहलियां 2 पौड़ियां तक, आपे बख्श कराइंदा प्यारा,
आपे सच निशान, आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान। कल ये तुकां वास्ते सुना जुड़न वास्ते भी लिखी है, आपे बख्श कराइंदा, आपे ही बख्शिश करता है। आ संसार च हर करतब उसकी बख्शिश ते नाल हो रहा। देखांगे मैं कर रहा, तुसीं कर रहे हो, आ कर रहे, असीं इदां गल्लां भी साडी व्याख्या इदां दी है, मैं कथा करदा, तुसीं कहो कि मैं कथा सुनदा। नहीं भाई, उसकी बख्शिश है तो कथा सुन पा रहे हैं, उसकी बख्शिश है तो कथा कर पा रहे। जो बख्शिश करते ने करता पुरख जी वाहिगुरू गुरुदेव, तां बोलिया जाता, नहीं तो एक शब्द भी नहीं जे बोलिया जाता। आप तो ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਪਟਾਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, तो गीता के वक्ता हो जाते हैं। पुछते ने पंडित जी की सवाल है तेरा, पुछ के सवाल पुछना। तो याद रखना, अज अगर किते भी कोई बोलता है ना, तो करता पुरख की रजा तो बिना नहीं जे बोलता। ये बोलने का ताण उसे दा जे जिसनों असीं विज्ञानक तकनीक ना देखते सुनते ना। आ स्पीकर तो नहीं बोलता ना, आप स्पीकर की आवाज़ सुनते हैं, सियाणे कहते स्पीकर बोलता ना भाई, स्पीकर नहीं बोलता। ये अंदर जे बिजली की ताकत ना होवे तो थोड़ा बोल पाएगा, ये आवाज़ नहीं गूंजेगी। ये बिजली के ताण करके चलता है, ये आवाज़ साड़ी गूंजती है। इस आवाज़ नूं, आ बोलने की तस्वीर नूं सालों साल रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, पर किहदी ताकत दे नाल, विज्ञान की बिजलई ताकत दे नाल इसनूं आपां रिकॉर्ड कर रहे हैं और सालों साल सांभिया जा सकता है। पर कदों तक, जदों तक ये ना बिजली की ताकत रहेगी। जदों किसी कारण बिजली की ताकत चो निकल गई, ये सब रिकॉर्ड रुकड़ सब खत्म हो जाना है। शरीर भी उदों तक ही बोलता है, उदों तक ही सुनता है, उदों तक ही चलता है जदों तक करते की ताण, करते की ताकत विच रहिंदी। और वो ताकत सत है, वो ताकत नाम दी है। इनू कहते आपे बख्श कराइंदा, आपे बख्शिश करता है। तो आपे ही बख्शिश करके करता की है, जो कुछ करतब हो जाता है तो हर करतब के उत्ते एक निशान पैंदा है, एक मोहर लगती ना, तां वो कामयाब मन्निया जाता। कोई कागज़ लिखते हो, जब तक तुसीं उत्ते दस्तखत नहीं करते तब तक उस कागज़ नूं तुहाडा लिखिया नहीं मन्निया जाता। पता नहीं किहने लिख दिता होना है, तो जिसने दस्तखत कर दिते ने, साइन आप अजकल कहने साइन करते, वो प्रवान हो जाता है। पुरानी शब्दावली से निशान, मोहर लग गई, साइन हो गए ने, बस जिहदे उत्ते साइन हो गए वो पक्का हो गया। जी तरह इस तरह गुरु का निशान भी तो मिलता है ना। पुराने बजुर्ग साडे तो जो गुरबाणी लिखण वास्ते कोई होर साधन नहीं सी, लोग पोथी लैंदे, उतों उतारा करते, उतारा करवा के महाराज जी को लेके आउंदे ते महाराज दे निशान लेंदे कि महाराज आ पोथी असां लिखी है, आप जी देख लो, कोई वाध काट होवे जे सही करवा के आप जी ते निशान दे दिओ, साइन हो जाण। महाराज दे साइन हो जाते, फिर वो पोथी प्रमाणित हो जाती। इस तरह करता पुरख की बख्शिश ते करता पुरख का ही निशान जदों साडे ते लगदा है ना, जिस जीव ते लगदा है, तो उही लोक ते परलोक च प्रवाणित हुंदा जे। जिन्ना चिर ये निशान, चूँकि आदर्श मंडल का है, रूहानीयत का है, जिन्ना चिर किसी जी नूं ये निशान नहीं मिलता, उन्ना चिर वो परलोक विच जाके उन्हें कोई थां नहीं जे मिलता। ठीक है, साढ़े चों बहुत गिणती, बहुत लोग परलोक नूं नहीं मन पा रहे, नहीं क्योंकि देखिया नहीं है, तो असीं इत्थे खड़े जो देखिया नहीं आपां मनदे नहीं। तो आपां भाई बहुत कुछ ऐसा है जो देखिया नहीं है पर आपां मनदे आ। क्यों मनदे आ? जो कुछ फलाने विज्ञानक ने आखे है, तो चेता रखना गुरु नानक आखदे ने, इस करके आपां मनदे आ। गुरु नानक जी कहिंदे ने, नानक जी उपाय कह लिख नावै धर्म बहालिया, ते सच्चे ही सच निबड़े
चुन वख कटे जजमालिया, थाओ न पायन कूड़ियार, मूँह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रत्ते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिख नावै धर्म बहालिया। वो धर्म किदां साडी पछाण करदा है कि भाई ये चंगा कि ये करते की निशान मनी जाती है। एक बहुत प्यारा बचन इस निशान नूं होर गहरे समझाता है। पिछे समझा हो गए राग शिराग का जिक्र है, जदों जी उस धर्म की कचहरी के सन्मुख खड़े होंदे ने ते कचहरी जाते तो फिर किवें पछाणदा है। अज तीन मूँह काले दोज कचाले, एक ना तो काले मूँह करके टीका लगा के तोड़ देंदा है, तो दूजे पासे जिन्हां दे उत्ते गुरकर्ते के नाम की कला वरत रही होंदी है, उन्हां दे मत्थे टिक्के लाल, उन्होंने लाल टीके लगते हैं। असीं इसनूं समझांगे लाल टीके कित्थे लगदे, इत्थे ते नहीं लगदे, नहीं लाउंदे। असीं याद रखना ये शरीरां दी आपां गल नहीं करदे। प्यारा जब तिन मुख टिक्के निकल हैं, जिन मन सच्चा नाओ, जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरू जी का नाम आके वस जाता है, उन्हां दे रूहानी मंडल ते मत्थे ते टीका लग जाता, निशान लग जाता है। वो निशान जिसते सदके पहचान होंदी है भी ये साडा है। अध्यात्मी विद्वानां दी जो गल अनुभवियां दी समझ सुनते हैं ना, तो इसनूं अपने ढंग नाल समझाते हैं। संसारिक दर्शन मान लो 10 बंदे एक लाइन च लगे ने, तो असीं की करते हैं, 10 बंदियां चों असीं किसी नूं फेल पास या इहो जिहियां गल्लां बातां चलदियां होण ते किवें करोगे? असीं उन्हां नूं कोई टोकन देंगे, उन्होंने कोई निशान देंगे, भाई आ निशान वाला इस पासे तो इस निशान वाला इस पासे। जिन्हां दे उत्ते मुकालख लगी हुंदी ना, वो दूजे पासे जाते ने। जिन्हां ने दाग दोष मूँह चलिया लाए, उन्होंने दरगे बैसन ना ही जाए। उन्होंने दरगाह दे विच बैसन नूं थां नहीं मिलता। ते जिन्हां नाम धियाया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां दे मुख उजले ने, उन्हां नूं रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। ये निशान मिलते ने। महाराज कहन लगे आपे बख्शिश करते हैं तो ये आपे निशान लाउंदे ने, जिसके सदके इस जीव नूं अगे माण ते सन्मान मिलता है। इत्थे संसार विच आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमाण। असीं देखते हाँ इत्थे जो कुछ भी वरतदा है हुक्म दे विच वरतदा है। ते आ पाठ करदे वेखिया होना, जदों असीं हुक्म दे सिहारी वरती लैने आ ते दा मतलब हुक्म दे विच। आपां सतसंगत च आके बैठे आ, ये किस तरह आके बैठे आ? ये हुक्म दे विच आके बैठे आ। किसी कारण कोई जी सतसंगत विच नहीं आए, चेता रखना वो भी हुक्म दे विच ही ने, उन्हां नूं इत्थे आउण लई अजे थां नहीं मिलिया, आग्या नहीं मिली। असीं इस गल नूं मोटे मोटे तौर पर एक दूजे नूं दोष लगा देने आ, पर ज्यों ज्यों अध्यात्मकता की गहराई पढ़ते समझते तो पता लगता है इत्थे उही आप आउंदे ने जिन्हां नूं हुक्म मिलता है, आग्या मिलती है। जिन्हां नूं अजे आउण दी आग्या नहीं मिली, वो दरवाजे तो के मुड़ जाते। साडे घरां दे बहुत बच्चे ने, चंगे ने, ईमानदार ने, नेक नीयत ने, पर की करते ने, सानूं दरवाजे तो छड्ड के मुड़ जाते ने, दरवाजे तो लै लैंदे ने, दरवाजे तो ही छड्ड जाते हैं। कई अंदर आ जाओ, नहीं अजे नहीं, फिर आवांगे। वो फिर कदों? जदों हुक्म वरतेगा उदों आउणगे। असीं उन्हां नूं बुरा भला घर जाके कही ने तुसीं आ नहीं करदे, तुसीं आ नहीं करदे, पर असीं अरदास नहीं करदे, हे सच्चे पातशाह इन्हां लई भी हुक्म जारी करो ना, तुसीं किरपा करो ना, इन्हां बच्चिआं लई भी हुक्म होवे तुहाडा, ताकि ये भी तुहाडे कोल आ जाण। ये हुक्म वरतदा, इत्थे सब कुछ हुक्म दे विच वरतदा है। और इत्थों तक कि वो आप भी इसे अपने रूहानी हुक्म दे विच ही वरतदा है। गुरु नानक साहब दी साखियां पढ़न वाले जानते हो कि जो गुरु नानक पातशाह साहब जी की मुलाकात दार्शनिक मंडल साखियां चो कलयुग दे नाल हुंदी है। कलह कलेश कलयुग का इलाका है, कलयुग का मंडल है, उन्हां दे नाल मुलाकात हुंदी है। तो कलयुग कहंदा जी इत्थे ते सारा संसार ही कलह दा है, क्योंकि मुने दा कलह बुरी, संसार वादे खपी है, कलह बुरी है।
पर हुण तो जोगी कल दा है, जोगी कले दा है, इत्थे ते साडा राज है। तो जो गुरु नानक सन्मुख जाते ने तो हथ जोड़ खड़े होंदे, महाराज राज तो सानू दिता सी, आ गए हो आप, हुण की बनेगा? भी राज तो जिसका कला दा सी ते कला दा राज दे के तुसीं आप आ गए हो, हुण की बनेगा? सतगुर कहण लगे हुण कुछ नहीं बनेगा। असीं भी संसार दे विच जो समय की पाबंदी का नियम है ना, असीं उहदे विच वरतांगे, पर तुहानूं एक काम करना पेगा। कलह ने कहा कि कह लगे जिथे कोई साडा नाम जपेगा, वाहिगुरू नाम जपेगा ना, उत्थे तेरा जोर नहीं चलेगा। वादे हो गए। उन्हें भी कहा ठीक है, जिथे भी कोई नाम जपेगा, वाहिगुरू कहेगा, उत्थे कलह का जोर नहीं पेगा। अज भी भावें असां हासे च ते भावें चुटकले च कहीए कि जिन्ना चिर आपां इत्थे बाणी पढ़दे ते सुणदे रहिंदे आ, उन्ना चिर साडे ते कोई कलह कलेश का प्रभाव नहीं हुंदा। जदों असीं बाणी सुणनों हट जाने आ, एक साडी आम बोल है ना कि देग वरदे ते कलयुग आ जांदा है, क्योंकि उदों बाणी का प्रवाह सीधे तौर पर गायन कथा कीर्तन पाठ रुकिया होता है। शायद इसे करके वडेरे ने एक परंपरा बनाई है कि भाई जिन्ना चिर देग वरतदी है, उन्ना चिर सतनाम वाहिगुरू जपते रहो। आ वेखिया होना हर थां ते लगभग भावें किते भी होईए, हुक्मनामे तो बाद देग वरतनी शुरू होंदी है तो संगत कोई शब्द कोई पौड़ी पढ़न लग पैंदी है, कोई गाउण लग पैंदा शब्द नूं, नहीं तो भाई सतनाम वाहिगुरू का जाप होण लग पैंदा भी, ताकि असीं किते उस सत नूं टुट ना जाइए जिस तों टुटदियां ही कलह दा प्रवेश हुंदा है। जिवें एक पल भर वास्ते जे बिजली डिसकनैक्ट होंदी है तो अंधकार अपने आप आ जाता है, इसी तरह सत तो टुटांगे तो कलह का प्रभाव अचानक साडे ते पवेगा। यतन करिया करिए वध तो वध समा सत दे नाल जुड़े रहण दा। कोशिश तो साडी निरंतर होनी चाहिए है, पर कोशिश है गुरु किरपा करन साडी कोशिशां नूं बूर पवे कि अंदर वध तो वध समा साडा सत नाल जुड़े रहिए। तो सत नाल जुड़े रहण दा इक्को तरीका जे जप मन सतनाम सदा सतनाम। होर तीसरा सत दा उपदेश साडे को नहीं गा। महाराज कहण लगे वो वरतदा आप है। गुरु नानक पातशाह कहण लगे एक तुहाडी गल असीं मान लईने आ कि असीं संसार दे विच तुहाडे बनाए नियम के मुताबिक ही शरीर वरतांगे, नहीं तो गुरु करता जे अपने मौज से गुरु नानक आंदे तो शरीर छड्डदे ही ना, किहड़ा कल का प्रभाव किहड़ा दुख पैना सी। पर नहीं, जो संसारी आरजावां का नियम है वो सारे नियम परिवारक तौर पर गुरु नानक पातशाह ने, दशमेश पातशाह साहब तक जोत ने परिवारक तौर पर जो सारे नियम वरते वरताए ने, परिवारक दुख भी भोगे सुख भी भोगे, विछोड़े भी भोगे, घर दी मौतां भी देखियां खुशियां भी देखियां, क्योंकि सब समय के मुताबिक है, ये हुक्म के मुताबिक है। जदों भी किते गल बने तो की कहना नहीं हुक्म च है, नहीं तो जे इस अवस्था को किते आपां कह सकीए एक पासे आपां कहने गुरु सर्व कला समर्थ ने, तो कि माता गुजरी साहिब जी इस सरहंद के साके नूं रोक सकते सी ना, एक बार अरदास कर देंदे। असीं कहने कि सिख की अरदास ने अटक दरिया रोक दिता है, पर माता गुजरी साहिब जी तो ठंडे बुरज बह के कह सकती थी धन गुरु नानक एक साका ना वरते, पर नहीं, वो कह के तोर दिन बच्चे हो ये हुक्म है, इसी तरह वरतना है, तुसां सथिर रहना, जो वरतदा जे वरती जाणदे आ जे तुसीं पक्के रहना। ये साडे वास्ते है, केवल माता जी ने दो साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहा, उन्होंने दो साहिबजादिਆਂ ਦੇ द्वारा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कहा कि भाई तुहाडे ते वरतन लग्या बहुत कुछ वरत सकदा जी, दुख तुहानूं डूम डरावे देणगे, लालच देणगे, दुख देणगे, इस संसार चों तुहाडे ते पैंदा रहेगा, पर तुसां अपने आदर्शां ते टिके रहना। और अज तक जे एक सिख स्वीकार करदा है तो माता दे इस उपदेश नूं कि भाई दुख तो पैंदे रहने ने, लालच भी मिलते रहने ने, चोटां भी पैंदियां रहणियां ने, पर तू अपने आप ते टिकिया रही। किन्ना चिर? जिन्ना चिर तेरे अंदर ताण है, जिन्ना चिर तेरा शरीर समर्थ है, सत जोत चलदी तो टिकिया रहे। जोत निकल गई उस तो बाद अपना कोई दावा नहीं। याद रखना, आपे हुक्म वरतदा प्यारा, ये हुक्म दे विच वरत रहा है, हर थां ते वरत रहा है कि दशमेश पातशाह ठंडी रातां दे विच गुजरदे ने, तुरदे ने, ते कर सकते रोक सकते, पर नहीं कहण लगे ना भाई अपने वास्ते नहीं। भाई जीवा जी हनेरी रोकण की गल करते हैं
तो गुरु अंगद देव कहने लगे ना भाई हुक्म दे विच रहा करो। हुक्म च वरतते ने, कहने लगे आपे ही फुरमान। पर सत यह है कि आप ही हुक्म दे दाते तो नियम भी आप है, बंदिश भी आप बनाई है, तो अपनी बनाई बंदिश विच आप टिकते ने, क्योंकि फुरमान भी तो आप जारी करते हैं। कहने लगे आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवै दान। भगती का खजाना भी आप है, तो भगती का दान भी तो आप देंगे। इस करके आप अरदास विच रोज़ाना दान मंगते ना, सिੱਖੀ दान मंगते, केश दान मंगते, विसाह दान मंगते, भरोसा दान मंगते हैं, तो आप मंगते ना दाना सिर दान, नाम दान बख्शो। याद रखना ये दान ने जिहड़े आप प्राप्त करते हैं। अज कहने लगे भगती प्रीत एक दान है। आप इत्थे मंगणे महाराज सानू भगती की दात मिले, सिੱਖੀ की दात मिले। आप मंगते महाराज प्रीत की दात मिले, क्योंकि असीं जो करते हैं ना इस प्रीत विच साडे लाए हुए प्रेम दे विच मोह के अंश मौजूद हुंदे ने, पर जदों गुरु करते वालों प्रीत की डोर मिलती है तो उहदे च मोह का अंश नहीं हुंदा। इसे करके गुरबाणी च एक वचन है साई प्रीत जे आपे लाए, फिर वो सच्ची प्रीत है जदों आप लाउंदे ने। कह लगे ये दान है, भगती का भंडार आप है, खजाना उन्हां दा है, ते भगती का दान भी ते आप देंदे ने। आपे भगति भंडार है प्यारा, आपे देवै दान। आपे सेव कराइंदा प्यारा, आप दिवावै मान। फिर सेवा भी आप करवाउंदे ने, सेवा का बल भी तो आप बख्शिश करते हैं। ये मनते हैं कि बिना करता पुरख जी के बल तो कोई सेवा तो नहीं कर पाएगा ना। असी तो मनते हैं गुरबाणी के हुक्म मुताबक एक साह नहीं लिया जा सकता, तो फिर ताण निभा के जी तोड़ के सेवा किदां की जा सकती। याद रखना ये भी करते के बल सदके है। एक निक्की जी गल असीं गुरु नानक पातशाह साखियों च सुनी, जदों गुरु नानक पातशाह साहब जी ने गुरता गद्दी की बख्शिश बाबा लैणा जी नूं कर दित्ती। परिवार के जीआं दे खास करके पुत्रां कहा महाराज तुसीं की कीता जे? कहण लगे भाई उहदा भांडा सी, ये दात भांडे च पैणी, तुहाडा भांडा तैयार नहीं होया, तुसीं पुत्र रूप च रहे हो, पुत्र रूप होण करके तुहाडा भगती का भांडा तैयार नहीं हो सकिया, इस करके ये दात भांडे च पैणी सी। अगों कहण लगे पिता जी सब कुछ तुहाडे वास है, ये भांडा किहने दिता? कहण लगे भांडा भी असीं दिता। हैरान हो गए पुत्र कि महाराज ये भांडे च दात पैनी सी ते भांडा भी तुहाडा है, तुसीं दिता है ते सानू दिंदे। असीं पुत्र हाँ। कहण लगे असीं ते तुहानूं कहा सी कढ लो, असीं ते कटोरा चढ़ च डिग्गिया सी, भांडा ही सी ना, असीं ते कहा सी कढ लो, तुसीं कहा सी साडा काम थोड़ा ते ना सेवकां दा काम है, सेवक ने कढ लिया। याद रखना भगती दी बल सेवा दा बल आप देंदे ने, दात भी आप देंदे ने, भांडा भी आप देंदे ने, इशारा ते बल भी आप देंदे ने। आपे सेव कराइंदा प्यारा, आप दिवावै मान। ते सेवक नूं फिर मान भी आप मिलता है। हर की वडियाई वड्डी है ना, सेवक नूं मान मिलता है। फिर की हुंदा है? आपे ताड़ी लाइंदा प्यारा, आपे गुणी निधान। ते जदों किसी नूं मान मिलता है, तो जो सेवक नूं मान मिलता है, अज तक असीं वडेरिਆਂ दी साखियां च पढ़िया तो सुनिया, जदों किसी गुरमुख नूं सुरपाव मिलता है ना, वो गद गद हो जाता है। बस यही फर्क है, साडे तुहाडे वर्गे जीआं नूं सुरपाव मिलता तो साडा सिर हंकार नाल उच्चा उठता है। असीं गरूर नाल सिर उच्चा के फोटो खिचाने करते हैं, सब कोई इत्थे इदां हुंदा है। सानूं तुहानूं सेवा का सुरपाव मिलता है तो असीं चौड़े जो होकर फोटो खिचाने हैं। उत्थे किसी प्यार भगती वाले नूं सुरपाव मिलता है तो वो बॉडी लैंगुएज देखना, वो होर सुंगड़ जाएगा, वो होर निहुड़ जाएगा, वो होर अदब दे नाल गुरचरण च ढह पवेगा। कि सिरपाव तो उही मिले है, पर जिहदा भांडा शुद्ध नहीं वो आकड़ जाएगा, तो जिहदा भांडा निर्मल है वो टिक जाएगा। महाराज कहन लगे जदों करता पुरख दे प्यार कला वरतदी है ना, तो ताड़ी लग जाती, समाधि लग जाती, प्यार लग जाता है। इत्थे ताड़ी का मतलब समाधि वो नहीं कि शुन समाधि होगी, ताड़ी चल के नहीं, इस ताड़ी का मतलब है टिकाओ प्राप्त हो जाता है। जिन्हां ते गुरु की कृपा वरती है वो टिकते ने,
ਤੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਝਾੜ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਵੀ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਗੁਣੇ ਨਿਧਾਨ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਤੁਲ ਪਰਵਾਣ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਾਲਸਰਾਏ ਵਰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਪ ਜੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਅਤੁੱਲ ਤੁਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਅਤੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਕੰਡਾ, ਆਪ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਅਤੁੱਲ ਤੁਲਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਸੀਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।